Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Good morning, sir. Very good morning. Yeah. Am I audible? Yes, yes. Okay. We will do quick recap on Google Ads, what we discussed last week, and then we'll proceed to uh, email marketing tool, which is called MailChimp. So once we finish off these two things, then probably we are almost done with the complete learning process. All right. So let me share you the screen. I hope my screen is visible to all of you. So other day we created some campaigns, and then after that, unfortunately, on Friday, I think on Friday, the sessions that we did, I was not able to capture it. uh, I forgot to record, so I couldn't share the link. But just to recap, because few of you guys were not there. So once we create the campaign and we reach to an interface where we have all the campaigns, which whatever we have created, that will be there. So be it, I just paused it. I'm like, for test purpose, I created, and then I paused it. So far, whatever we had discussed last week, any questions from anyone so that I can answer it, or else I'll be proceeding towards this topic. Not really. So all right. So once we create the campaign and it is approved by Google and it runs for some time, then we have all these things which are available right now. I'll just enable it so that it becomes easy for us to review. Okay. So once we click on the campaign, it gives about what is the performance that it has done. Now here you can see it is saying not eligible, campaign ended, because we triggered it till 27th of January. So it ended, but nevertheless, we can see what are what ads that we had created. Okay, ads and extension, we can see the ads in. So this interface which you are able to see is only going to visible once you
come to a level once you actually add on your paid Google in Google ad account, you will be able to submit your payment details and all. Then once everything is set, then only you'll be able to enter in this section. So we discussed about how to create campaign, text campaign, call campaign, video campaign. So all these things that we had discussed. Okay, so just to review it, what are the campaigns that we have created and how it goes. So this was, say for example, the title of the campaign that we had created, and then followed by descriptions which are there. So I'll go towards keywords. So what happens in this, we will be able to see what are the keywords that we actually opted for and how many clicks that has been generated. So you can see with the digital marketing, see what we added. Total number of impressions that was generated is 598, and then clicks generated is 81. So CTR automatically it calculates. CTR is basically click-through rates. So number of clicks divided by impressions multiplied by 100 is what it is. That comes as a CTR. Now we had kept, initially for test purpose, we had kept 10 rupees as cost per click. So you can see average cost per click, in the sense what Google is bidding for us is something up to 10 rupees, which is 9.74, 8.68, 9.78. So it will be of a level of, it will not be crossing the cost per click whatever we are proposing for. जितना कॉस्ट पर क्लिक हम प्रपोज कर रहे हैं गूगल को, उतना ही कॉस्ट पर क्लिक वो चार्ज करेगा या उससे कम। नहीं, तो ये यहाँ पे जैसे ही आपका ऐड ट्रिगर हो जाता है और अलग अलग कीवर्ड से ऐड आता है, तो उसके अंदर आपको ये दिख के आ जाता है कि कितने इंप्रेशंस काउंट हुए, कितने क्लिक्स हुए और कितना टोटल कॉस्ट उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गया है। नाउ एक चीज है जो कि ये कीवर्ड, अगर हम इसके अंदर कुछ और कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा और भी एक्सरसाइज किया था, जिसके अंदर ये था कि ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच कहते हैं अगर किसी भी चीज को हम ओपनली लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिखा, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड मैच। बट इसी को अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूं, ये हमारा हो जाता है फ्रेज मैच। नाउ ब्रॉड मैच का कॉन्सेप्ट ये है कि एनीथिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कीवर्ड्स, यानी अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड आ सकता है, अगर कोई मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड आ जाएगा, अगर अगर कोई डिजिटल कंपनी सिर्फ सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी इनके इंडिविजुअल पीसेस के अंदर भी हमारा ऐड डिस्प्ले होता है, इन द सेंस डिजिटल कोई सर्च कर रहा है, मार्केटिंग सर्च कर रहा है या कंपनी सर्च कर रहा है तो भी हमारा ऐड डिस्प्ले हो जाता है। अब होगा क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोगों के बजट को हम कैसे सेव करें, बिकॉज जब हम इस तरह के ओपन कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। इन द सेंस अगर कोई सर्च कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, या कोई सर्च कर रहा है OTT मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, कोई भी मार्केटिंग कंपनी के फॉर्मेट में या डिजिटल कंपनी के फॉर्मेट में कोई भी चीज अगर सर्च कर रहा है तो हमारा कीवर्ड डिस्प्ले होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट कीवर्ड होगा तभी डिस्प्ले होगा। इस कॉम्बिनेशन में कुछ भी अगर क्लिक होता है, मतलब कॉम्बिनेशन में सर्च होता है, तो हमारा ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। वेयर सेकंड फॉर्मेट जिसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, अगर उस फॉर्मेट में कोई सर्च करता है, अगर हम यूज करते हैं कीवर्ड को, तो अगर कोई सर्च करे टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो हमारा आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद करके अगर कोई सर्च करे तो हमारा आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पैकेजेस करके कोई सर्च करे तो भी आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जॉब्स करके कोई सर्च कर रहा है तो ये फ्रेज सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ, कुछ और कीवर्ड्स के साथ अगर कोई सर्च करता है तो भी हमारा ऐड परफॉर्म करेगा। और इस तरह इन्वर्टेड कॉमास, यानी ये वर्ड एक होगा, उसके साथ और उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ और वर्ड्स अगर वो यूज कर लेंगे तो भी हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। वेयरएज अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसी चीज को अगर आप यूज करते हैं
इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एग्जैक्टली यही फ्रेज सर्च कर रहा है तभी आपका एड डिस्प्ले होगा। ओके तो तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तीनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जो फ्रेज जो सबसे पहला जो है ब्रॉड मैच है, उसका मतलब ये है कि जब आप ज्यादा विजिबिलिटी या ब्रांड परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपके एड, आपके कंपनी के नाम का पता चले, तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर आपको ब्रॉड मैच वर्कआउट होता है कि कोई भी सर्च कर रहा है, रेलेवेंट भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है, तो दैट इज ओके। सो यू आर मोर ऑपरेटिंग ऑन विजिबिलिटी पर्पस, तो आप ब्रॉड मैच आप उसको यूज कर लेते हो। फ्रेज मैच variations related to this can work out. Exact match unless until someone searches this only। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होता है, अनवांटेड ट्रैफिक भी का भी क्लिक आ जाता है। सेकेंड केस में ये रहता है कि मोर और लेस रेलिवेंट आता है। थर्ड केस में ये रहता है कि वेरी पर्टिकुलर अगर कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा है तभी आपका एड डिस्प्ले होगा और अदरवाइज नहीं होगा। तो थर्ड केस में क्या होता है कि आपका एड बहुत लिमिटेड ऑप्शन में डिस्प्ले होता है। आपका ऐड बहुत लिमिटेड ऑप्शन में डिस्प्ले होता है बट मनी वेस्ट नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन चीजों को ऐड करने, मतलब इस फॉर्मेट में ऐड नहीं किए थे जब शुरू में, तो किस तरह के वर्ड्स हमारे अपीयर हुए थे और उसकी वजह से हम लोगों को कितना लॉस इन द सेंस मॉनेटरी लॉस कितना हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आपको कीवर्ड नजर आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद, तो हम लोगों ने क्या कीवर्ड ऐड किया था, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो मार्केटिंग कंपनी एज वन वर्ड, एज ए वर्ड विच इज अपीयरिंग, तो लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहे हैं तो भी हमारा ऐड डिस्प्ले हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया देन ऑल्सो, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जगह पे यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, और आगे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है तो भी हमारा आ रहा है, राइट। और इससे हमारा काफी क्लिक्स जनरेट हुआ है, काफी इंप्रेशन जनरेट हुए, काफी क्लिक्स जनरेट हुए हैं और 100 रुपए हमारे यहाँ पे चले गए। तो इस कैटेगराइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि आप अपने बजट को लिमिटेड रखोगे और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ बजट होता है, सो दैट आप अपने कीवर्ड्स के वेरिएशंस को यूज करें। अब इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स एक्सक्लूडेड दिख के आ रहा है, तो फ्राइडे जब हम क्लास ले रहे थे तो उस टाइम में हमने क्या किया, जो कीवर्ड आपके मतलब का नहीं है हम उस कीवर्ड को क्लिक, तो सर्च कीवर्ड क्या है, जो हम कीवर्ड ऐड कर रहे हैं। यानी हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐड किया, सोशल मीडिया एजेंसी ऐड किया, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट ऐड किया, तो ये सर्च टर्म वो है जो कि, ये जो सर्च टर्म पे कीवर्ड आ रहा है ये वो टर्म है जो कि हमने ऐड किया है। उससे मिलता जुलता कीवर्ड्स के इंप्रेशंस और क्लिक्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। लेकिन सर्च टर्म का मतलब ये है कि जो एंड यूजर एक्चुअली सर्च कर रहा है गूगल में, जिसके बाद हमारा ऐड डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने भले डिजिटल मीडिया कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने वर्ड ऐड किया है, लेकिन ये वो कीवर्ड्स हैं जिसको सर्च करने के बाद हमारा ऐड डिस्प्ले हुआ और लोगों ने क्लिक किया है। अब जो कीवर्ड्स हमारे रेलेवेंट नहीं है, विच हैज ईटन अप आवर मनी, सो हमने क्या किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया या उसको निगेटिव लिस्ट में हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो जो कीवर्ड आपके मतलब का नहीं है आप उसको निगेटिव लिस्ट, मतलब सर्च कीवर्ड के बाद निगेटिव कीवर्ड आ रहा है फिर सर्च टर्म आ रहा है, तो सर्च टर्म से आपको ये पता चलता है कि लोग आप किस कीवर्ड को सर्च करने के बाद, लोगों के सर्च करने के बाद आपका ऐड आ रहा है। अब इसमें जो कीवर्ड आपके मतलब का है आप छोड़ दीजिए, जो कीवर्ड आपके मतलब का नहीं है उसको सेलेक्ट करके हम ऐड एज निगेटिव कीवर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम ऐड एज निगेटिव कीवर्ड करेंगे, तो जब हम ये करेंगे तो वो एक्सक्लूडेड हो जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर मैं ऐड एज ए निगेटिव कीवर्ड यहाँ पे करता हूँ, ये पूरे के पूरे ऐड ग्रुप में भी कर सकता हूँ, कैंपेन में कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमारा उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ओके। अब आप इसी तरह से हर दिन हमको क्या करना होता है, हर दिन हम जाएंगे अपने ऐड परफॉर्मेंस के ऊपर, की सर्च कीवर्ड्स देखेंगे, सर्च टर्म देखेंगे, उसमें जो अप्रोप्रिएट कीवर्ड है उसको हम ऐड कर लेंगे, जो इनअप्रोप्रिएट कीवर्ड है उसको हम निगेटिव कीवर्ड्स में डालेंगे।
और वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से आप जो भी कीवर्ड को आप निगेटिव कीवर्ड में डाल रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो अब हमारा ऐड डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज हमने उसको निगेटिव कीवर्ड के अंदर डाल दिया है, राइट। तो इससे इसका एडवांटेज है कि भाई हमारा बजट वेस्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं फॉर सम टाइम कि जो आपका ब्रांड विजिबिलिटी के साथ जो एड परफॉर्म कर रहा था वो आपका कम होगा, बट अल्टीमेटली हमको अपने रेलेवेंट कीवर्ड से रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचना है, इसलिए हमको ये काम करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि इस लिस्ट के अंदर एक्सटेंसिव, जब आप नीचे इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे 50 कीवर्ड्स बता रहा है। अगर हम इसको और एक्सटेंड कर लेंगे तो बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया था अंडर नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए टिकटॉक मैंने ऐड किया है, ठीक है, ओके। तो आप चाहें तो और कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जॉब्स हैं, करियर्स हैं, कम, उसके बाद लिस्टिंग्स हैं। इस टाइप के कीवर्ड्स भी आप निगेटिव में डाल सकते हैं। वजह क्या है, यू डोंट वांट पीपल टू कम टू यू फॉर जॉब, फॉर करियर, फॉर एनी एडवर्टीजमेंट पर्पस, ओके। अब ये चीज, ये कीवर्ड से रिलेटेड हो गया। तो आप अपने कीवर्ड को रिफाइन करते जाएंगे, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कीवर्ड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे कीवर्ड स्टेटस है, यहाँ पे हम कीवर्ड, यहाँ पे ऐड, अगर हम कीवर्ड कर रहे हैं, किसी कीवर्ड को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखिएगा कि आपको वेबसाइट का यूआरएल डालने के लिए कह रहा है। तो अगर आप कोई वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तो उससे रिलेटेड गूगल आपको सजेशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे digitos.com अगर मैं डाल रहा हूं तो यहाँ पे गूगल जो है हमको कुछ सजेशन दे रहा है, ओके। तो ये सजेशन हमारा अप्रोप्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम कीवर्ड्स हम डाल देंगे, तो उससे रिलेटेड गूगल के डेटाबेस में जो भी आएगा वो आ जाएगा। अब गूगल ने यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दे दिया है, तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, सर्च मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग, जो भी है। फॉर एग्जांपल सर्च मार्केटिंग कंपनी मैंने ऐड किया। अब आप ऊपर देखेंगे तो जो भी प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देयर इज अ चांस कि ये हमारा लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑप्शन है वहां पे ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए सर्च इंजन मार्केटिंग यहाँ पे ऐड हो गया। बट ये कैसे और ऐड हुआ है, ये एज ए ब्रॉड मैच ऐड हुआ है। तो अब क्या होगा, सर्च कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, फिर भी हमारा ऐड आएगा। तो हम चाहते हैं ये अनलेस अंटिल कोई एग्जैक्टली ये सर्च ना करे तब तक नहीं आना चाहिए। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे, सो दैट इफ समवन इज सर्चिंग फॉर बेस्ट सर्च मार्केटिंग कंपनी देन ओनली हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। उसी तरह से आप और नीचे देखेंगे कि आपको और भी कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिस्टिंग्स देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, ओके। सर्च मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी, ओके। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं और अपने कीवर्ड लिस्ट को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कीवर्ड्स आ जाएं, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी आ गया, तो आप सारे कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कीवर्ड हम यूज कर लें, सोशल मीडिया एजेंसी, ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी, सोशल, तो ये आपको कुछ लिस्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आप चाहें तो उस तरह के कीवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच या एग्जैक्ट मैच फॉर्मेट के अंदर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम मोस्टली क्या करना चाहिए, कुछ की फ्रेज को हम, कीवर्ड्स को हम फ्रेज मैच फॉर्मेट में ले लें, ताकि टॉप बेस्ट इस टाइप से करके अगर कोई यूज हो रहा है तो भी चलेगा, और कुछ को हम एग्जैक्ट फ्रेज मैच में ले लें, सो दैट हमारे लिए लिमिटेड चीजें रहें, हमारे लिए बजट वेस्टेज बहुत कम से कम हो, ओके। जैसे टॉप सोशल मीडिया कंपनीज है,
इसको हम फ्रेज मैच में ले सकते हैं, क्योंकि इन हैदराबाद या नियर मी या कुछ भी अगर सर्च कर रहा है, लेकिन अगर नियर मी यहाँ पे एग्जैक्टली है तो हम यहाँ पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से तो ये ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि किसको हम फ्रेज मैच में यूज करें, किसको हम एग्जैक्ट मैच में यूज करें, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को ये इसलिए प्रैक्टिस करना है ताकि जब हमारा एड रन होता रहे तो हम ये देख सके कि कौन सा कीवर्ड हमको बिजनेस में हमको क्लिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा कीवर्ड नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और कोई भी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया फर्म है, ये ब्रॉड मैच फॉर्मेट में है, हम चाहे तो इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसको फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी कीवर्ड जो यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या होता है कि इस तरह से आपको या तो कोई कीवर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर आप उसको निगेटिव में ऐड कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कीवर्ड पे आ जाते हैं। उसी तरह से आ जाता है जब हम सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स पे जब जाते हैं तो ये जो भी हमने ऐड क्रिएट करने के वक्त जो भी हमने सेट किया था उन चीजों को हम फर्दर जाके हम उसको एडिट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये ऐड ग्रुप इन द सेंस ये ऐड तो एक्टिवेटेड है, लेकिन यानी ये जो हमने क्रिएट किया था वो एक्टिवेटेड है। अब इसमें क्या है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी डेट एक्सपायर हो गया है, जो भी चीजें हो गई हैं, तो इसलिए ये बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ऐड ग्रुप का नाम क्या है वो भी है, स्टेटस क्या है उसको हम देख सकते हैं। अगर हमको इसको पॉज करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, वो हम कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सेट है, एडिशनल सेटिंग्स में जाके हम देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एड रोटेशन सेट है, इन द सेंस जो गूगल अपने आप जितने भी हम टाइटल डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों ने किया था, क्रिएट किया था, रोटेशन बेसिस पे गूगल अपने आप एड्स को क्लिक करता है और उसके बाद वो परफॉर्म करता है। बाद में क्या हो जाएगा कि हम चाहें तो ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, तो हम इसको अगर हम करते हैं तो जिस एड कॉपी के ऊपर इन द सेंस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज्यादा क्लिक्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल एड सेट 1 आया, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन का सेट आया, दूसरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का सेट कभी और आया, तो जो जिसको देख के लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, अगर हम ऑप्टिमाइज उसको कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक जिस एड टाइटल और डिस्क्रिप्शन का होगा वही हर कीवर्ड के लिए हमारा वही एड डिस्प्ले होगा। ओके, तो उसी तरह से हम बाकी चीजों को भी हम तो ये सेटिंग से रिलेटेड है। इस सेटिंग के अंदर क्या है, इस सेटिंग के अंदर आप और भी चीजें चेंज कर सकते हैं, जिसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मोर के अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या ऐड हमारा आ रहा है, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसके बारे में यहाँ पे दिखा दे रहा है। ओके, उसी तरह से अगर हम डिवाइसेस में जाए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवाइसेस को लेके, इन द सेंस अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड मोबाइल पे ज्यादा डिस्प्ले हो, so based on the kind of business what we can do, we can actually make our ads to perform better on certain devices, not to perform on other devices। तो आपको पास ऑप्शन आ जाता है मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टैबलेट्स। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन पे, चूंकि आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल इस तरह का है जो कि मोबाइल फोन पे ज्यादा कन्वर्जन होता है, और आप चाहते हैं कि मोबाइल, चूंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, वहां पे अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे भी अगर आपका ऐड आ जाता है तो वो फिर डिस्प्ले में नहीं आता, बिकॉज एक दो ऐड आएगा, फिर उसके बाद मैप आ जाता है, फिर उसके बाद लिस्टिंग्स आती हैं। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल में हमेशा हमारा बेहतर परफॉर्म हो, तो हम मोबाइल डिवाइस को ऐड करके बिड एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं, इन द सेंस हमने 10 रुपए अगर हमने नॉर्मल कॉस्ट पर क्लिक रखा है और मोबाइल के लिए अगर हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 12 रुपए तक हमारा ऐड मोबाइल पे चलेगा
₹10 तक हमारा ऐड जो है कंप्यूटर पे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आप कोई भी चीज इसके साथ आप कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ऐड लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कम दिखे तो हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टैबलेट्स पे बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि टैबलेट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा, तो मैंने यहाँ पे -50 किया है, इन द सेंस अनलेस अंटिल ₹5 तक उसका ऐड बजट नहीं आता तब तक हमारा ऐड डिस्प्ले ना हो। इन द सेंस ऑलमोस्ट हम डिप्लीट कर दिए हैं। अगर हम चाहें तो इसको और भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, अप टू 90% या अप टू 100% भी हम कर सकते हैं। बट यानी ₹1 अगर कोई क्लिक आएगा तब हमारा ऐड डिस्प्ले हो जाए, सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, सो आई हैव केप्ट इट लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद का ऑप्शन आ जाता है चेंज हिस्ट्री। जितना भी चेंजेस मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर किया हूं ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि टोटल चेंजेस हमने कितने किए हैं। टोटल 48 चेंजेस हमने किए हैं। ठीक है, किसने किया, कब किया, ये सारा का सारा आ गया, और किस किस चीज के अंदर किया है। तो ये हमारे लिए ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने किसी कैंपेन को कितनी बार चेंज किया है, क्या किया है, और उसका परफॉर्मेंस क्या ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वो हमारे लिए सामने आ जाता है। ओके, अगर हम ऑल कैंपेन्स पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक कुछ चीजें और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जब नीचे आएंगे तो आपको लैंडिंग पेज दिख के आता है, यानी कौन से लैंडिंग पेज को हम लोगों ने टारगेट किया था। ओके, उसी तरह से वीडियोस है कि जो वीडियो ऐड अगर हमने रन किया है तो उस वीडियो का क्या परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो इसका इंप्रेशन कितना मिला, इसका व्यूज कितना हुआ, और टोटल जो व्यूज रेट है वो कितना है। यानी व्यू क्या है, इंप्रेशंस क्या है कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपका ऐड दिखा है और आप स्क्रॉल करते चले गए तो वो इंप्रेशंस में आ गया। व्यूज में है कि उसको क्लिक करके कितने लोगों ने देखा है, बिकॉज वीडियो कॉस्ट पर व्यू के ऊपर वर्क होता है और बाकी जो टेक्स्ट एड्स हैं वो कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर वर्कआउट होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू 59 पैसे हैं करीब करीब, सो इट इज लेस देन ₹60 पैसे के आसपास हमारा एक व्यू का कॉस्ट आ रहा है। टोटल कितने व्यूज जनरेट हुए, 437 व्यूज हमारे जनरेट हो गए, एंड वी हैव स्पेंट समवेयर अराउंड ₹257। ओके, तो ये आपका व्यूज से रिलेटेड है। उसी तरह से यहाँ पे जब आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है ऑडियंस का, तो इसमें आपको ये दिख के आता है कि आपका जो कैंपेन है, आपका जो कैंपेन है वो किस एज ग्रुप के लिए है और किस एज ग्रुप के अंदर परफॉर्म किया है, क्या है, ये यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑडियंस के अंदर 18 to 24, 25 to 35, 34, 35 to 44 और अननोन। तो हम ये देख सकते हैं कि अपने एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा एड किस एज ग्रुप में ज्यादा हिट हो रहा है। उसी तरह से जेंडर आप देख सकते हैं, फीमेल मेल, ये जेंडर देख सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम इन द सेंस किस इनकम ग्रुप के लोगों ने आपके ऐड को देखा है। तो लोअर देन 50% इन द सेंस बिलो एवरेज इनकम ग्रुप पीपल हैव एक्चुअली सीन। नाउ ये गूगल कैसे एनालाइज करता है, ये आपके ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री और जो भी कैप्चर करता है गूगल, जो भी कुकीज कैप्चर करता है उसके हिसाब से, या तो आप शॉपिंग अच्छा कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कर रहे हैं या ऑनलाइन जो भी वॉलेट्स वगैरह आप यूज करते हैं उसके बेसिस पे भी ये डिफाइन होता है कि हाउस होल्ड इनकम किस तरह से ये डिफाइन करता है। उसी तरह से पेरेंटल स्टेटस भी यहाँ पे है कि नॉट ए पेरेंट, पेरेंट, अननोन, राइट। तो majority of the people who have clicked on our ad comes under not a parent, still bachelor kind of scenario, so ये है। अब इससे आपको उस तरह के एड्स में आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, एनालाइज करने का मौका मिलता है जब आप पेरेंट बेस्ड एड्स रन कर रहे हैं, या प्री स्कूल का एड है, या कोई एड जो कि आप है तो बच्चों के लिए लेकिन आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस राइट, वेरी करेक्ट। तो वो चीजें आ जाती हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे और भी चीजें देखेंगे, तो जो एक चीज मैंने ये बताया था उसके अंदर कि
लोकेशंस आप देख सकते हैं कि किस एड ग्रुप के लिए हमारा एड परफॉर्म किया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैदराबाद को मैंने टारगेट किया है, कहीं पे हमारा जो है पिन नंबर हमने टारगेट किया है, जो भी हमने टारगेट किया है, तो ये यहाँ पे उस चीज के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक और इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि जैसे चेंज हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो अभी तक हमने किसी लोकेशन को एक्सक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम पूरे हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं, बट उसके अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करने का ऑप्शन ले लेता हूं, तो फॉर एग्जांपल वेबसाइट ट्रैफिक मैं लेता हूं और यहाँ पे मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर लोकेशन को मैं एक्सक्लूड करूं, तो मैं यहाँ पे एक पूरे सिटी के अंदर एक पिन नंबर मैं लेके भी उसको एक्सक्लूड कर सकता हूं। ओके, तो हमारा एड पूरे हैदराबाद में नहीं, इस पर्टिकुलर लोकेशन जो रेड है इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर हम किसी और लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं वो रेड में चला जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि अगर आप एक एट लार्ज आप होल सिटी को टारगेट कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप टारगेट नहीं करना चाहते हैं, आप उसको यहां से रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से आप एड शेड्यूल में जा सकते हैं, जहां कि आप अपने डे एंड आवर्स के एड को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप अपना एड को रन करना चाहते हैं, किस टाइम में आप अपना एड को रन नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपका एड शेड्यूल जो है ये बताता है कि आपका एड किस टाइम पे शेड्यूल्ड है और किस टाइम से किस टाइम तक वो रन हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो इसके एड के शेड्यूल को हम एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे एडिट ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो ये हमको ऑप्शन देता है कि आप कौन से एड को आप क्लिक करना चाहते हैं या किस एड के शेड्यूल को, यानी कितने टाइम से कितने टाइम तक एक एड रन हो। हम जेनरिक भी कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे एक पर्टिकुलर टाइम कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना एड शेड्यूल कर सकते हैं। एक दिन के अंदर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मंडे को हम चाहते हैं 11 से 1 बजे तक हमारा एड रन हो, फिर 3 से 5 बजे तक एड रन हो, तो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मंडे को गए, उसके बाद हमने यहाँ पे चूज कर लिया कि हमारा एड जितने बजे से जितने बजे तक रन होना है उसको हमने चूज कर लिया, और वो हम फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 11 बजे से 1 बजे तक रन करना चाहता हूं अपना एड, तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया 11 to 1 o'clock विच इज 13, और फिर मैं मंडे को ही मैं दूसरा शेड्यूल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे मंडे को एक और क्लिक कर सकता हूं, और यहाँ पे मैं अपने प्रिफर्ड टाइम के हिसाब से दूसरा जो भी हमारा टाइम स्लॉट हम लेना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 बजे से लेके मैं 8 बजे तक अपने कैंपेन को रन करना चाहता हूँ शाम में। ओके, तो इस तरह से जब मैं कर दूंगा तो यहाँ पे उस शेड्यूल के अंदर ये चीज आ जाएगा। ओके, तो आप अपने एड को अपने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपने एड को सेट कर सकते हैं। किसी टाइम में आप रिमूव कर सकते हैं, किसी टाइम में आप एडिट कर सकते हैं, और आप आवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, डेज भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से डे एंड आवर के फॉर्मेट में आ गया, तो ये कौन से दिन क्या आया है वो चीज आ गया। किस घंटे में ज्यादा आपका एड परफॉर्म हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो वाला जो एड है हमारा 12 से 1 के बीच में चला, जो हमारा मतलब कितने कौन से टाइम में 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितना इंप्रेशन आया, कितना उसका व्यूज हुआ, वो सारी चीजें आपको दिख के आ जाएंगी। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीक आवर क्या है, आपके ऐड का पीक आवर, पीक परफॉर्मेंस आवर क्या है, किस टाइम में सबसे बेस्ट आपके ऐड परफॉर्म किया है। तो आप क्या करेंगे, अपने ऐड के सेटिंग्स को उसी तरह से मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा जैसे मैंने बताया ये ऐड के हिसाब से। डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और बिड एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि डिवाइस के हिसाब से आप बिड एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा आपका ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। कैंपेन सेटिंग्स में जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है कि वेबसाइट ट्रैफिक फॉर डेमो अगर है, इसको अगर मैं एनेबल करता हूँ तो मैं एनेबल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको देख सकता हूँ कि भाई ये किस लिए है, और क्या इसको मतलब हम और भी इसके डेट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये एड इसलिए एंडेड दिखा रहा है क्योंकि ये 28 जनवरी तक है। अगर हमको इसको और रन करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने ऐड के टाइम को हम और कुछ सेट कर लेंगे, और हमारा यही ऐड
एंड होने के बाद भी हमारा यही ऐड आगे रन कर सकता है। अगर हम इसके डेट को हम चेंज कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो ये हमारा जो अभी तक कैंपेन आपका एंडेड दिखा रहा था वो अब कैंपेन आपको एंडेड नहीं दिखाएगा, वो आपको इनेबल्ड दिखाएगा। ओके, तो हम सेटिंग्स में गए, ठीक है, अभी तक जो 25 का था वो एंडेड दिखा रहा था, अब ये एलिजिबल दिखा रहा है। इन द सेंस अब हमारा एड फिर से रन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप अपने कैंपेन को सेट कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे जाके अगर इस कैंपेन को मैं क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये वेबसाइट, हमारा गोल क्या था, वेबसाइट ट्रैफिक था, इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कैंपेन पे आए। उसी तरह से लोकेशंस में 5,01,000 और 5,04,000 था। अगर हम चाहें तो इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एड ऑन लोकेशंस हम ऐड कर सकते हैं पिन नंबर के हिसाब से, या पूरा का पूरा हम लोकेशन पे चले जाएं, इसको हम डिलीट कर दें और उसके बाद हम यहाँ पे पूरा हैदराबाद अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो हम हैदराबाद पूरा का पूरा हम डाल लेंगे। ओके, या फिर कोई और लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप डाल के उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने अनदर लोकेशन में हैदराबाद डाला, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है, इंटर लोकेशन दैट यू वांट टू टारगेट। तो अगर मैं पूरे हैदराबाद में एक पर्टिकुलर लोकेशन को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं तो मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा और उसके बाद ये सेव कर दूंगा। ओके, उसी तरह से आप लैंग्वेजेस को आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोकेशन में क्या है, 5,01,000 तेलंगाना, ठीक है, और ये है, तो ये दोनों है इंक्लूडेड है। बट जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख के आएगा कि हमारा जो है एक्सक्लूडेड लोकेशन के अंदर क्या है और इंक्लूडेड लोकेशन के अंदर क्या आ रहा है। ओके, अब आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई हम लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अपने डेली बजट को भी चेंज कर सकते हैं। 50 रुपए में हम देख रहे हैं या 100 रुपए में देख रहे हैं कि इतना ऐड परफॉर्म कर रहा है, हम इसको चाहते हैं कि भाई ठीक है चलो हम 70 रुपीज करना चाहते हैं या 700 रुपीज करना चाहते हैं सो दैट हम देख सकें। तो ये प्लेटफॉर्म आपको ये देता है कि आप स्लोली अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करते चले जाएं, बजट को ऑप्टिमाइज करते चले जाएं और उसके बाद आपका ऐड जैसा भी परफॉर्म करता है आप मॉनिटर करते चले जाएं सो दैट आपके वेस्टेज आपका कम से कम हो। ठीक है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में हमने देख लिया है। अब चूंकि ये सिर्फ सेटिंग के तौर पे था तो मैं यहाँ पे इनेबल को अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ सो दैट हमारा ऐड परफॉर्म कर दे, पॉज कर देता हूँ सो दैट हमारा ऐड रन नहीं करेगा। ओके, चूंकि ये सिर्फ डेमो पर्पज पे है इसलिए हम इस चीज को रन अभी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने सेट कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारा का सारा ऑप्शंस आप अपने एड परफॉर्मेंस व्यूज के अंदर देख सकते हैं कि कितनी चीजें क्या आई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ट्रैफिक के इस पर्टिकुलर कैंपेन का 102 क्लिक आए, 1,15,000 करीब, सॉरी 1.15 यानी 1,150 के आसपास इंप्रेशंस आए हैं, कॉस्ट पर क्लिक इतना आया है और टोटल कॉस्ट 979 रुपीज हमारा ये आया है। अब नीचे जब आएंगे तो आपको ये दिख के आ जाता है कि कौन कौन सा ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा ऐड कैसे। तो ये समरी है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से इतना आ गया, सोशल मीडिया से इतना आ गया, एसईओ सर्विसेज मैंने डिलीट कर दिया होगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मैंने डिलीट किया होगा। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि सर्च वर्ड्स आ रहे हैं कि किस वर्ड से सर्च हुआ था, जो मैंने सर्च टर्म में आप लोगों को दिखाया था। वर्ड्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या वर्ड के कॉम्बिनेशन में निकल के आया है। ओके, टॉप 10 है, ब्रांडिंग है, फॉर है, तो बहुत सारी चीजों से हमारा ऐड निकल के आया, क्योंकि हमने शुरू में अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच रखा था, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन में आया हमारा ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन पे हो रहा है, मेल मेंबर में कितना है, फीमेल में कितना है, किस एज ग्रुप के लिए क्या है। डिवाइसेस का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर, तो मोबाइल पे कितना है, टैबलेट पे कितना है, कंप्यूटर पे कितना है, वो हम इंप्रेशंस देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा ऐड हमारा कितना परफॉर्म किया है। इंप्रेशंस 1,151 हो गया, क्लिक्स इतने हो गए, सीटीआर इतना हो गया। तो ये वाला ऐड हमारा सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका, और यहाँ पे देता है कि कौन से दिन आपका ऐड ज्यादा परफॉर्म किया, घंटों के हिसाब से कौन से टाइम पे आपका ऐड किस तरह से परफॉर्म किया, तो ये पूरा का पूरा आपका ये ऑप्शन दे देता है। और
आवर्स, पीक आवर्स आपको डिफाइन करने के लिए आसान होता है कि किस टाइम में लोगों ने ज्यादा किया। तो आप देखें रात के 12 बजे से लेके इस टाइम पे दोपहर के 12 बजे के आसपास तक थोड़ा सा कम है, और शाम में आपका एड परफॉर्मेंस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम उस हिसाब से अपने एड शेड्यूल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल है कि आप किस तरह से एड को क्रिएट करेंगे, फिर एड को कैसे मॉनिटर करेंगे, और फिर आपका एड किस कीवर्ड से कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए भी हमने ये बताया था कि ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है जो कि टूल्स के फॉर्मेट में आता है, वहां पे हम देख सकते हैं कि ये टूल्स एंड सेटिंग्स में आता है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाता है जो कि परफॉर्मेंस प्लानर है, कीवर्ड प्लानर है, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस है। तो एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं कि जो कि हम इस चीज को देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि हम कोई भी कीवर्ड से अब हम अपना एड रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कीवर्ड देखेंगे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने कीवर्ड को डाला है, हैदराबाद तेलंगाना में इंग्लिश और मोबाइल वर्जन में या डेस्कटॉप पे हमारा एड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, योर एड इज नॉट शोइंग। क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि मैंने पॉज कर रखा है। अब कौन कौन सा, अगर ये एक्टिवेटेड होता और बजट वहां पे हम डाल रखे होते, तो यहाँ पे अगर आपका एड यहाँ पे क्या आ जाता है, योर एड इज परफॉर्मिंग, योर एड इज शोइंग। फिर हम देख सकते हैं कि हमारा एड कहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो देता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन हैदराबाद रनिंग ए कैंपेन फॉर कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में इस टाइम पे आपका एड दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे लोकेशन को आप चेंज कर देंगे, लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए अगर लैंग्वेज चेंज करना है, डिवाइस में डेस्कटॉप या मोबाइल आप दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर दिए, या फिर आप किसी और लोकेशन के लिए कर रहे हैं, तो उस टाइम में वो आपका एड दिख रहा है नहीं दिख रहा, या कौन कौन सा एड किस किस कंपनी का एड दिख रहा है वो आपके सामने आ जाता है। ओके, तो इससे आपको फायदा ये होता है कि रियलिस्टिक सिनेरियो के अंदर पेज 1, पेज 2, पेज 3 जहां पे भी आपको देखना है वो आपका एड आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको क्लियर पता चल जाता है। उसी तरह से मैं कोई और कीवर्ड डालूं यहाँ पे, तो हमारा एड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हमको बता देता है, या फिर कौन कौन सा एड दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप जब एड आपका रियल टाइम में रन हो रहा होता है, तो गूगल आपको फेच करके बता देता है कि भाई आपका एड रन हो रहा है तो किस फॉर्मेट में हो रहा है। कभी कभी बजट को वो सपोर्ट नहीं करता, यानी बजट रिक्वायर्ड इज 500 रुपीज बट यू आर ओनली पुटिंग 100 रुपीज, तो आ जाता है यहाँ पे योर एड इज ओकेजनली विजिबल बिकॉज ऑफ बजट, बिकॉज ऑफ बिड वैल्यू। तो आपको ये पता चल जाता है कि बजट आपको इंक्रीज करना है या बिड वैल्यू इंक्रीज करना है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड का बिड हमको इंक्रीज करना है, तो वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये सारा डायग्नोसिस आपको इस टूल के जरिए से आपको पता चल जाता है। राइट, इसी तरह से यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको बहुत सारे रिपोर्टिंग के भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। रिपोर्टिंग के भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि भाई आपका एड कितना परफॉर्म किया है। इसको हम कन्वर्जन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि भाई हमारा एड कितना परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा या तो क्लिक्स के फॉर्मेट में आएगा, या फिर कॉल ओनली कैंपेन है तो कॉल के फॉर्मेट में आएगा। ये पता चल जाएगा कि हमारा कॉल परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो जब हम इन चीजों को, यानी जब आप कॉल ओनली कैंपेन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फोन कॉल्स एज ए लीड, या फिर मोबाइल ऐप एज ए डाउनलोड। ओके, तो फोन कॉल एज ए लीड अगर हम देखेंगे तो इस चीज को कैंपेन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि भाई कितने फोन कॉल जनरेट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कॉल लेंथ 30 सेकंड तक का अगर कॉल लेंथ है तो उसको लीड के फॉर्मेट में ये कंसीडर करता है। ठीक है, क्लिक टू कन्वर्जन इज 30 डेज। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं कि अगर आप कॉल ओनली कैंपेन में या कन्वर्जन अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमको ओवरऑल अगर हम कैंपेन के एडिट करके और बिल्कुल कैंपेन रन कर रहे हैं, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमको इन सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं लग पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको इस पर्टिकुलर पेज तक पहुंचने के लिए, इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमको अपने एड को सेट करना पड़ेगा, यानी 500 रुपीज प्लस सम टैक्सेस जो भी है, ऑलमोस्ट 680 या
सम ऑड अमाउंट इज देयर, जो कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने एड सेट करने के लास्ट ऑप्शन तक पहुंच के उस चीज को आप लोगों ने डिफाइन देखा भी है। तो उतना अमाउंट जब आप टॉप अप करते हैं तो उसके बाद गूगल का एक वो आ जाता है, कोड आता है, जो कि आप टॉप अप अगर उसको यूज करते हैं तो आपको 2,000 रुपए का और जो है आपको एड ऑन टॉप अप अमाउंट मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो 95% ऑफ द सिनेरियो वो मिल जाता है। कभी कभी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा एड परफॉर्म होने के एंड तक पहुंचते पहुंचते भी वो मिलता है आपको। तो ये पूरा का पूरा एड परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जो कि हम लोगों ने फ्राइडे को कवर किया था, बट बिकॉज रिकॉर्ड सेशन नहीं किए थे इसलिए हमने फिर से इसको रिकैप किया है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा और आज टाइम स्पेंड करेंगे ईमेल मार्केटिंग विच इज मेलचिम्प, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज दैट इज वन ऑफ अ easy and almost a kind of free tool that we have to use for promotional purpose। उसके अंदर हमारा कोई अमाउंट नहीं लग रहा होता है, बट फिर भी हम बहुत कुछ उसके ऊपर कर सकते हैं। Over to you guys। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आई थिंक ग्रुप में शहरयार ने शायद उस चीज को पोस्ट किया था, यस, कि जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह इसने लिखा था वो शहरयार हैज पोस्टेड इट। आई थिंक ही हैज कैप्चर्ड इट अदर डे, सो ही हैज पोस्टेड इट, राइट। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम मेल चिम्प की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी एसेंशियल टूल फॉर ऑल ऑफ अस। और उसके अंदर हम, जैसा मैंने कहा कि उसके अंदर कोई बजट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर हैं और हम लोग अपने इफेक्टिवली कर सकते हैं। ओके, सो गूगल में जाके या नॉर्मल भी आप मेल चिम्प, CHIMP, मेल इज मेल, और चिम्प जो है चिंपैंजी से बना है। तो उसका अब जब आप मेल चिम्प, मुमकिन है आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, या जब हमको मेल आता है, प्रमोशनल मेल आता है, तो वहां पे पावर्ड बाय मेल चिम्प लिखा हुआ आता है। ओके, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कम से कम 2,500 ईमेल्स तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया है, क्या आया है देख लेते हैं। असलम खान, व्हाट अबाउट वीडियो एड्स? वीडियो एड्स के लिए ये जरूरी है, जैसे मैंने नॉर्मली टेक्स्ट ऐड आप लोगों को बताया है, वैसे ही वीडियो ऐड भी क्रिएट करते हैं। सारी सेटिंग्स वैसे ही है, बस कीवर्ड्स की जगह पे आपको वहां पे आपको वीडियो का लिंक आपको डालना है जो कि यूट्यूब पे एक्टिव हो। और जब हम वीडियो ऐड करते हैं तो उसके अंदर यह है कि आपके 10 सेकंड के आसपास का वीडियो हो। उससे लंबा अगर वीडियो है तो आपका वीडियो जो है ऐड के अंदर परफॉर्म कम करता है। तो आप 10 सेकंड के आसपास तक का अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो आप कैंपेन में जाके, जैसे यहाँ पे कैंपेन है, कैंपेन हम क्लिक करें, न्यू कैंपेन क्रिएट करें, और यहाँ पे आपको ब्रांड और प्रोडक्ट विजिबिलिटी या फिर ब्रांड अवेयरनेस, ये दो फॉर्मेट में वीडियो एड्स आप रन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज भी रन कर सकते हैं, बट ये दो चीजें हैं जिसके अंदर सजेस्टेड है, चूंकि सिर्फ वीडियो इसके अंदर रन होता है तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस और रीच के लिए करूं तो ये हमारा डिस्प्ले ऐड भी है और वीडियो ऐड है, तो मैं वीडियो ऐड को क्लिक करूंगा। और उसके बाद इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वीडियो रीच कैंपेन, आउट स्ट्रीम रीच पीपल ऑन देयर फोन एंड टैबलेट्स। ओके, ये भी हो सकता है और एड सीक्वेंस भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट वाले में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आउट स्ट्रीम कर रहे हैं तो सिर्फ इन स्ट्रीम जो वीडियो आ रहा है उसी के टाइम में आता है ये, अदरवाइज और भी उसके नेटवर्क के अंदर आपके एड्स आपके डिस्प्ले होते हैं। क्योंकि जब हम ब्रांडिंग पर्पस पे यूज कर रहे हैं तो बेहतर है वीडियो रीच कैंपेन के तौर पे हम करें। अब यहाँ पे आ जा रहा है एफिशिएंट रीच, बम्पर, स्किपेबल, इन स्ट्रीम और मैक्सिमाइज, राइट। स्किपेबल एड और नॉन स्किपेबल एड आता है। अब जैसे ही हम नॉन स्किपेबल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिटेड हो जा रहा है कि आपको 15 सेकेंड्स तक का ही आपको एड नॉन स्किपेबल आएगा। तो इसका मतलब आप 10 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स के आसपास तक का अगर आप एड आपके पास वीडियो है तो आप नॉन स्किपेबल एड, इन द सेंस जब तक वो पूरा का पूरा परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक स्किप का बटन नहीं आता। वेयर एज फर्स्ट वाले ऑप्शन में थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड के बाद स्किप ऐड का ऑप्शन आ जाता है और वहां पे स्किप कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्किपेबल ऐड रन कर रहे हैं तो वो ऐड कॉस्टली होता है,
स्किपेबल एड अगर रन कर रहे हैं तो वो एड चीप होता है, सस्ता होता है। तो मैं मान के चलता हूं, चूंकि मेरे पास भी अभी 10 सेकंड्स का वीडियो रेडी नहीं है, 15 सेकंड का वीडियो रेडी नहीं है, इसलिए मैं नॉन स्किपेबल एड नहीं क्रिएट कर सकता हूं। अगर स्किपेबल एड हमको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारा जो भी वीडियो है उसको हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये आपको उसी तरह से सारी चीजें पूछेगा कि क्या बजट है, कितना बजट है, कितना आप देना चाहते हैं, कैंपेन टोटल, कैंपेन का टोटल बजट आप कितना देना चाहते हैं। ओके, ये डेली है या टोटल है, तो हम टोटल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डेली आपको करना है तो डेली भी कर सकते हैं। डेली में हम कितना बजट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 रुपीज का यहाँ पे बजट डालना चाहता हूँ। ओके, स्टार्ट डेट कब से शुरू हो रहा है, एंड डेट हम चूज कर सकते हैं कि कौन से दिन हमारा कैंपेन हमारा एंड हो। तो ये पूरा का पूरा सेटिंग उसी तरह से है जैसे हम टेक्स्ट ऐड के लिए कर रहे थे। ओके, अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, यूट्यूब वीडियोस में है, यूट्यूब के पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क में है। हम सब जगह करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, या सिर्फ अगर हम यूट्यूब, तो इसमें ये जो ऑप्शंस हैं नेटवर्क का ये डिसेबल्ड है, यूट्यूब में भी आएगा प्लस उसके दूसरे नेटवर्क में नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको इनेबल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो है ऐड जो फॉर्मेट है वो जेनरिक है, इसलिए हम इसको वहां तक रखे हुए हैं। फिर हैदराबाद का ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया है। अब लैंग्वेज इज इंग्लिश, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको ये कहता है कि आप अपने ऑडियंस को एज ग्रुप, डेमोग्राफिक, इन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपको जिस ऑप्शन के अंदर आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर लीजिए। मेल, फीमेल, अननोन, किस किस चीज को आप टारगेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आपको वीडियो एड के अंदर देता है एडवांस सेटिंग के अंदर। ठीक है, उसी तरह से ऑडियंस सेगमेंटेशन है कि आप किस सेगमेंट के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज लिस्टेड हैं, तो आपको लगता है कि जिस सेक्शन के ऐड को आपको डिस्प्ले करना चाहिए वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। एजुकेशनल इंटरेस्ट कोई रखता है तो एजुकेशन में जा सकते हैं, अगर कोई और है तो हम क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हम जेनरिक अगर रखेंगे तो सबको ये चला जाएगा, तो मैं फॉर नाउ जेनरिक रख रहा हूं। और आप जब राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एड का परफॉर्मेंस क्या होगा इस बजट के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, बजट कर दिया है, बिड जो भी बजट हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने YouTube का लिंक डालिए। ठीक है, तो अगर आपका वीडियो YouTube पे अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। अगर वीडियो नहीं अवेलेबल है तो आपको सबसे पहले अपने लिए वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। आप किसी और का प्रमोट करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली ये है कि भाई ऑफ कोर्स आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। मैं देखता हूं मेरा एक ब्रांड के लिए एक था जो कि हमने यूज किया हुआ था, वो अगर मिल जाता है, हैंडी अगर मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक डिजिटल सर्विसेज से रिलेटेड है। ये दे दिए। अब किस तरह से आएगा वो सारी चीजें हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं अपने ऐड को, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये HTTP नहीं HTTPS है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर देता हूँ। सो ऑन क्लिक आई वांट पीपल टू कम टू दिस डिस्प्ले ऐड में यहाँ पे
255 कैरेक्टर तक यहाँ पे दे रहा है, तो आप जितना भी इसको रन करना चाहें वो कर सकते हैं। और कॉल टू एक्शन यहाँ पे दे रहा है कि भाई फाइनली हम कॉल टू एक्शन क्या डालना चाह रहे हैं, तो प्ले नाउ, साइन अप, कॉल नाउ, जो भी आपको ऑर्डर नाउ, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो शॉप नाउ, बाय नाउ, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ। तो ये कॉल टू एक्शन बटन है, या फिर लर्न मोर कर सकते हैं। लर्न मोर करने के बाद यहाँ पे हम हेडलाइन डालेंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, ये यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स तक ही शायद रहता है। हाँ, 15 कैरेक्टर तक ही रहता है। मैंने 29 कैरेक्टर यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ओके। डिजिटल एजेंसी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिख के आ रहा है आपको डिजिटल एजेंसी, जो कि मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद आप देखिएगा digitos.com/डिजिटल मीडिया एजेंसी। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम इसको और लंबा हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो ऐड के अंदर इन स्ट्रीम वीडियो या जो भी हो, आपके पास चूंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। ओके, मैं इतना ही रख रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं रख रहा हूँ। अब इसी तरह से अगर आप YouTube पे इस तरह से दिखेगा, और गूगल के वीडियो पार्टनर्स में किस तरह से दिखेगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ गया डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मीडिया एजेंसी इन हैदराबाद, ये करके लिख के आ रहा है। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद वो वहां चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इसका थंबनेल भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, या तो डायरेक्टली वो वीडियो से उठाएगा, या मैं चाहूं तो थंबनेल अपलोड करने के लिए तो मैं अपना कोई थंबनेल भी यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, मैं सबसे एक, तो ये क्या दिया, सेलेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड फाइल इज टू लार्ज। जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो फाइल टू लार्ज है, बिकॉज ये 300x60 पिक्सल के लिए है और मैक्सिमम साइज इज 150 KB। ओके, तो ऑटो ऑटो जनरेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इजीली अवेलेबल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो अब यहाँ पे बाकी चीजें आपको आ जाता है, और यहाँ पे CPM आता है, पर मिलियन है, इन द सेंस पर 1000 आपको यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे पर 1000 के लिए आप क्या कॉस्ट डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। मैं पर 1000 के लिए अगर 10 रुपीज डालना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे योर कैंपेन माइट नॉट सर्व बिकॉज योर एड अमाउंट इज टू लो। तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 50 रुपीज तक कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ट्राई टू इंक्रीज। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एड बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेगा। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जैसे ही मैंने 100 रुपीज किया है वो मैसेज चला गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने इंप्रेशन आ सकते हैं, कितने कॉस्ट जनरेट होंगे, आपका टोटल बजट कितना लगेगा, और कितने लोगों तक पहुंचेगा आपका एड। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। उसी प्रोसेस में जाएगा कि ये अंडर रिव्यू होगा, और फिर उसके बाद जाके ये पूरा का पूरा कैंपेन हमारा परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं कंटिन्यू टू कैंपेन कर देते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यू टू कैंपेन इन द सेंस हमारा एड रेडी हो जाता है और सबमिट हो जाता है। ये वीडियो इफेक्टिव रीच 31 को हमने जनरेट किया है। ये हमारा कैंपेन एलिजिबल स्टेटस के अंदर है, और ये हमारा कैंपेन आप देखिएगा कि नीचे अगर जब आके आप देखेंगे तो ये पेंडिंग अंडर रिव्यू है, और ये बगल में क्या लिखा हुआ है, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। तो ये स्किपेबल एड है, इन द सेंस 5 सेकंड के बाद स्किप का बटन आ जाएगा, और उसके बाद आपका एड स्किप किया जा सकता है। बट अगर आप नॉन स्किपेबल एड रन करते हैं तो आपको मैक्सिमम साइज है 15 सेकंड्स के लिए आप अपने एड, अपना वीडियो वहां पे अपलोड करेंगे तो ही आप रन कर सकते हैं। दिस इज अंडर रिव्यू, और एक बार ये अप्रूव हो जाएगा तो ये परफॉर्म करेगा, जैसे कि ऊपर के मैंने एक एड्स आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो एड के अंदर भी एक एड था जो कि हम लोगों ने रन किया है, और उसका परफॉर्मेंस भी वहां पे दिख के आ रहा था। सॉरी, मेरे ख्याल से ये इसी ऐड को ले रहा है। हाँ, ऑल कैंपेन्स में वो ऐड है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप, अगर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे एक वीडियो ऐड यहाँ पे हमारा इनेबल्ड है। ये
ये वाला वीडियो ऐड हमारा इनेबल्ड था जो कि एंड हो चुका है। इसी वीडियो का मैंने बताया आप लोगों को कि कितना परफॉर्म हुआ है, क्या हुआ है। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस वो जब रन हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए इसका टाइटल जो है वो भी हमको दिख के आ रहा है, बाकी चीज़ें भी हमको दिख के आ रही हैं। तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका कैंपेन क्या परफॉर्म किया है, कितना परफॉर्म किया है, कब कितना परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, ये मैंने अभी बनाया है क्योंकि ये जस्ट ट्रायल पे है, ऑलरेडी ऊपर उस तरह का ऐड रन कर चुके हैं। तो मैं इसको पॉज फॉर्मेट में कर देता हूँ। जब ये अप्रूव हो जाता, अभी भी ये रिव्यू के लिए गया है, अप्रूव होने के बाद हमारा स्टेटस जो है अप्रूव्ड दिखा देगा बट पॉज्ड दिखाएगा। ओके, तो जितने भी एड्स हैं, क्योंकि ये टेस्ट पर्पस पे है तो मैंने इसको पॉज कर दिया है। तो इस तरह से आप वीडियो ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। सारे एड्स का यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई खास बहुत वेरिएशन नहीं है। तो जो टेक्स्ट ऐड का है उसी तरह से आप वीडियो ऐड रन कर सकते हैं, उसी तरह से आप बाकी एड्स भी आप रन कर सकते हैं। ओके, एनीवेज चूंकि टाइम एक्सीड हो गया है, सो अब मेल चिम्प के बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं आप लोगों को, बट दैट्स ओके फॉर टुडे। मेल चिम्प हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और फिर देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल टेक ऑफ फॉर टुडे। Sir, what else we will be covering this week, sir? Any मेल चिम्प है और उसके अलावा थोड़ा सा मैं रिव्यू करता हूँ कि और क्या है, बट मोर और लेस हमने तकरीबन चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है, क्योंकि गूगल एड्स भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव कवर हुआ है। और आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। स्टिल अगर कुछ भूल रहा हूँ या कुछ ऐसा है तो मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, या आप लोगों के दिमाग में कोई और चीज़ है तो पूछ सकते हैं। about domain, sir? डोमेन के बारे में इस चीज़ के इस कोर्स के अंदर तो नहीं है, बट डोमेन के लिए अगर करना चाहें तो उसके डोमेन और होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों ने इस चीज़ के अंदर नहीं कवर किया है। बट डोमेन परचेज करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो GoDaddy का मोस्टली प्रोमिनेंटली यूज होता है, बट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेमचीप है या फिर GoDaddy का है, ब्लू होस्ट है, जो भी, यानी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों देते हैं, तो हम किसी से भी परचेज कर सकते हैं। बट डोमेन के लिए जो बेटर ऑप्शन है, ज़्यादातर पॉपुलर ऑप्शन है, GoDaddy है। होस्टिंग के लिए कोई भी आप चीपर ऑप्शंस ले सकते हैं, ब्लू होस्ट का भी है, या फिर इनमोशन है, या फिर नेमचीप है। तो इस तरह के ऑप्शंस पे आप जाके डोमेन और होस्टिंग को बुक कर सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर डोमेन एंड होस्टिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बाय इट, हाउ टू डू इट। अगर मोस्टली चूंकि CS के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको आइडिया होगा, बट फिर भी अगर नहीं है तो इन स्पेसिफिक अगर कोई पूछना चाहे तो आप द ट्रैक भी पूछ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। Okay, sir. Sir, like what curriculum has been decided? Can you please share it on the group? I'll do that. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. No,